یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش ہے خبریں. پہلے ہیڈ لائنز. جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں 10 بستروں والے پیلیٹیو جیریٹک کیئر وارڈوں کا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ہاتھوں افتتاح. 64 کروڑ 10 لاکھ روپے کی مالیت کے 6 بجلی پروجیکٹ عوام کے نام وقف. پونچھ سورنکوٹ میں ترارا والی چوکی کے پاس آج سڑک کے ایک المناک حادثے میں 6 باراتی جاں بحق اور کئی دیگر شدید زخمی. وزیر اعظم کا سبکدوش ہونے والے 72 راجیہ سبھا ممبروں کی الوداعی تقریب سے خطاب. ایوان میں ان کے تجربات کو قلم بند کرنے کی دی صلاح. اور جموں کشمیر میں 2021-22 کے دوران ٹیکس محصولات میں 25.38% کا اضافہ. خبریں تفصیل کے ساتھ. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں 10 بستروں والے پیلیٹیو جیریٹک کیئر وارڈوں کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ اس تاریخ ساز قدم سے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں عرصے سے پائی جانے والی خلیج کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. اس کی بدولت بزرگ لوگوں اور نازک حالت میں عمر رسیدہ مریضوں کو عزت و وقار کے ساتھ طبی سہولیات فراہم ہوں گی. طبی نگہداشت کے عمل میں یہ اہم قدم حقیقی طور وزیر اعظم کے اس ویژن کی علامت ہے جو انہوں نے دور دراز علاقوں کے لیے جدید طبی سہولیات کی فراہمی میں کمال حاصل کرنے اور لوگوں کو ان کی دہلیز پر خدمات بہم پہنچانے کے لیے شہری اور دیہاتی تقسیم کو ختم کرنے کے بارے میں رکھا ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پیلیٹیو جیریٹک کیئر کے افتتاح سے ایک دوسرا سماجی پہلو سامنے آتا ہے. اس کی بدولت بزرگوں کو طبی نگہداشت کے حوالے سے اعلیٰ ترجیح دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کیئر ریفارم کے لیے ہماری کوششیں مؤثر رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے صحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو جامع اور طویل مدتی قومی ویژن کے تحت ایڈریس کیا ہے تاکہ دور دراز علاقوں میں معقول اور قابل بھروسہ طبی نگہداشت کی سہولیات بہم ہوں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بجلی کے بنیادی ڈھانچے کے 6 پروجیکٹ کل عوام کے نام وقف کیے جن پر 64 کروڑ 10 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے. ان پروجیکٹوں کی بدولت جموں خطے میں موجودہ بجلی نظام میں 660 میگا واٹ بجلی کی صلاحیت کا اضافہ ہوگا. اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ گلاڈنی گرڈ اسٹیشن کی صلاحیت 400 میگا واٹ تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کی بدولت جموں شہر کی 6 لاکھ آبادی کو فائدہ ہوگا اور شہر میں اضافی بجلی کی فراہمی سے عوامی ضرورتوں کی تکمیل یقینی بن جائے گی. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 16 نئے سب اسٹیشنوں کے قیام سے بجلی کے موجودہ ڈھانچے کو فروغ حاصل ہوگا جس کی بدولت معاشی سرگرمی میں استحکام یقینی بن جائے گا. ایل جی نے کہا کہ بجلی پروجیکٹوں کے قیام سے نہ صرف بجلی کی کمی کو پورا کرنے میں مدد ملے گی بلکہ اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. انہوں نے کہا کہ حکومت جموں کشمیر کے عوام کو پائیدار توانائی فراہم کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد پر کام کر رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران جموں اور کشمیر صوبوں میں بجلی کے کئی نئے پروجیکٹوں کے افتتاح سے یو ٹی کی 1.25 کروڑ آبادی کو بجلی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد مل گئی ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یو ٹی انتظامیہ جموں کشمیر میں بجلی کی پیداوار اور تقسیم کاری میں بہتری لانے کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہے. پونچھ ضلع کے سورنکوٹ سب ڈویژن میں ترارا والی چوکی کے مقام پر آج سڑک کے ایک المناک حادثے میں کم از کم 6 افراد جاں بحق اور کئی دیگر شدید زخمی ہو گئے. ہمارے نمائندے نے پولیس ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ باراتیوں سے بھری ایک سومو گاڑی ترارا والی چوکی کے نزدیک 250 فٹ گہری کھائی میں جا گری. جموں کشمیر میں آج کووڈ 19 کے 17 نئے معاملات کی نشاندہی ہوئی جن میں سے 15 کا تعلق کشمیر سے جبکہ 2 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے. میڈیا بلیٹن کے مطابق آج مزید 12 متاثرین صحتیاب ہوئے ہیں جن میں سے 10 کا تعلق کشمیر سے جبکہ 2 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے. یو ٹی میں اس وقت سرگرم مریضوں کی تعداد 151 ہے جن میں سے 139 کا تعلق کشمیر سے جبکہ 12 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے. بلیٹن کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 21,031 کووڈ مخالف ٹیکے لگائے گئے. اس طرح سے ایسے ٹیکوں کی مجموعی تعداد اب 2,21,62,978 ہو گئی ہے. ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت کووڈ سے بچاؤ کے اب تک 184 کروڑ 6 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگوائے جا چکے ہیں. مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,27,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے. اس وقت صحتیابی کی شرح 98.76% ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,500 سے زیادہ افراد صحتیاب ہوئے. اس طرح شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 4 کروڑ 24 لاکھ 89,004 ہو گئی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 1200 سے زیادہ نئے معاملات کا پتہ چلا ہے.
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेचीदा मसाइल को हल करने में तजर्बा एक अहम रोल अदा करता है। वो आज 72 राज्यसभा मेंबरों को दी गई अलविदाई पार्टी से खिताब कर रहे थे, जो अपनी मुद्दत मुकम्मल करके इस साल अप्रैल से जुलाई के दरमियान रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने वाले अरकान के वसी तजर्बे को याद करते हुए वजीर आजम ने कहा कि राज्यसभा मेंबरों का काफी तजर्बा होता है और कभी कभी तजर्बा इल्म के मुकाबले में ज्यादा अहम साबित होता है। उन्होंने मेंबरों से ताकीद की कि वो मुल्क के मफाद में अपने तजर्बों का इस्तेमाल करें और ऐवान में अपने तजर्बात को कलम बंद करें, जिसकी बदौलत आने वाली नस्ल को मजीद मदद मिलेगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि अब जबकि मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यह हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो कौम की तामीर में अपना हिस्सा अदा करे। उन्होंने मजीद कहा कि जो मेंबर अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रहे हैं उनमें 4 वजीर निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद शामिल हैं। AK एंटनी, अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, सुरेश प्रभु, प्रफुल्ल पटेल, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी रिटायर होने वाले अरकान में शामिल हैं। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने रिटायर होने वाले 72 मेंबरों के तजर्बे और उनकी देन के लिए उनकी सताइश की। जम्मू कश्मीर में टैक्स महसूलात में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में इस साल 25.38% का इजाफा हुआ है। GST, एक्साइज ड्यूटी, स्टैंप्स और मोटर स्पिरिट पर टैक्स जैसे बिलवास्ता टैक्सों की सूरत में 15,179 करोड़ 42 लाख रुपए की आमदन हुई है, जबकि 2020-21 में 12,105 करोड़ 95 लाख रुपए जमा किए गए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जरिए 11,163 करोड़ 95 लाख रुपए की वसूली की गई, जबकि गुज़श्ता माली साल के दौरान इसी मुद्दत में 9,020 करोड़ रुपए की आमदन हासिल की गई। 2021-22 में मोटर स्पिरिट की बिक्री पर 1,829 करोड़ 73 लाख रुपए का टैक्स वसूल किया गया, जबकि पिछले माली साल में 1,459 करोड़ 92 लाख रुपए था। कबायली अमूर महकमे ने आज खत्म होने वाले माली साल के दौरान 31 करोड़ 12 लाख रुपए के वज़ाइफ कबायलों से ताल्लुक रखने वाले तलबा में तकसीम किए। महकमे ने इस मकसद के लिए 2022-23 माली साल के लिए 45 करोड़ रुपए की रकम मखसूस की है। महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि कबायलों से ताल्लुक रखने वाले तलबा की तालीम जम्मू कश्मीर सरकार की आला तरजीहात में शामिल है। स्कॉलरशिप की रकम तलबा के बैंक खातों में PFMS मोड के जरिए बराह रास्त मुंतकिल की गई। आयुष वजारत ने 2022 के लिए वजीर आजम के योगा अवार्डों के लिए नामजदगियां तलब की हैं। जीतने वालों का ऐलान इस साल 21 जून को योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर किया जाएगा। नामजदगियों की दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन मोड में दी जा सकती हैं और कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। दरख्वास्त दहिंदा के लिए योगा में गैर मामूली रोल अदा करने की शर्त है। नामजदगियां पेश करने का अमल 28 मार्च से शुरू हुआ। 27 अप्रैल तक नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं। लेह इंतजामिया हेनली को एक डार्क स्काई सेंचुरी के तौर तामीर करने के लिए एक सहफरीकी समझौते पर दस्तखत करेगी। लेह हिल काउंसिल, वाइल्ड लाइफ और टूरिज्म महकमा मुश्तरका तौर इलाके में एस्ट्रो टूरिज्म को तरक्की देंगे। स्टेट वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट बोर्ड ने इस सिलसिले में मीटिंगों का सिलसिला बढ़ाया है ताकि मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की फौरी क्लियरेंस दी जाए और मुआवजे की रकम बढ़ाई जाए। वाइल्ड लाइफ एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि वो 15 रोज के अंदर अंदर मुआवजा अदा करें अगर जंगली जानवर घरेलू मवेशियों को जख्मी कर देते हैं। होम डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में तैनात डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद याकूब मलिक आज रिटायर हो गए। इस सिलसिले में फाइनेंशियल कमिश्नर RK गोयल ने मौसूफ के एजाज में दी गई एक अलविदाई तकरीब की सदारत की, जिसमें मौसूफ की खिदमात को सराहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से पुरजोर अपील की है कि वो रमजानुल मुबारक के पेश नजर लोगों को हर सतह पर राहत पहुंचाने के इकदाम करे। उन्होंने माह रमजान के पेश नजर सारिफीन को बिजली की बिला खलल सप्लाई को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। मौसूफ ने कल नूरबाग श्रीनगर में होलनाक आग की एक वारदात में 22 रिहायशी मकानों के खाकस्तर होने पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरीन की फौरी बाजाबादकारी के लिए इकदाम करने की भी अपील की है।
आसार शरीफ पिंजोरा शुपैया के मुतवल्ली मीर बशीर अहमद ने आने वाले रमजानुल मुबारक के दौरान अवाम को हर मुमकिन राहत बहम पहुंचाने की खातिर मौसर इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो माह मुकद्दस के दौरान सहरी और अफ्तार पर बिजली और पीने के पानी की सप्लाई यकीनी बनाएं। दूरदर्शन फ्री डिश सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसकी 43 मिलियन से ज्यादा घरानों तक रसाई है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने कहा है कि दूरदर्शन की डीटीएच सर्विस 2017 में 22 मिलियन से बढ़कर 2022 में 43 मिलियन घरानों तक पहुंच गई है। प्रसार भारती की डीटीएच सर्विस फ्री डिश वाहिद फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम डीटीएच सर्विस है, जिसके लिए नाजरीन को कोई भी माहाना फीस अदा नहीं करना पड़ती है, बल्कि इसके लिए फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स खरीदने के लिए तकरीबन 2000 रुपए की एक ही बार छोटी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिफ्यूजी एजेंसी यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज ने कहा है कि 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के दरमियान छिड़ी जंग से अब तक 4 मिलियन लोग यूक्रेन से निकल गए, जो दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप का सबसे बड़ा रिफ्यूजी बहरान है। पोलैंड में यूएनएचसीआर के सीनियर इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर एलेक्स मॉर्न का कहना है कि ये एक अलमनाक संग मील है और हालिया तारीख में तेज रफ्तारी से रिफ्यूजियों का इनखला है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नजर। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में 10 बिस्तरों वाले पैलिएटिव जेरियाटिक केयर वार्डों का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों इफ्तिताह। 64 करोड़ 10 लाख रुपए की मालियत के 6 बिजली प्रोजेक्ट अवाम के नाम वक्फ। पुंछ सुरनकोट में त्रारावाली चौकी के पास आज सड़क के एक अलमनाक हादसे में 6 बाराती जाम बहक और कई दीगर शदीद जख्मी। वजीर आजम का सुबकदोश होने वाले 72 राज्यसभा मेंबरों की अलविदाई तकरीब से खिताब। ऐवान में उनके तजर्बात को कलमबंद करने की दी सलाह। और जम्मू कश्मीर में 2021-22 के दौरान टैक्स महसूलात में 25.38% का इजाफा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है